Dear students, scholars, and my respected teachers, you all are welcome in the Google Classroom. Now I would like to invite you to join the Google Classroom and to learn about the features of Google Classroom. Moreover, I request you all that the whole video be watched by you so that you can learn informative sessions and other assignments which are related to Google Classroom. आप सभी से अनुरोध कि आप ये गूगल क्लासरूम देखें और ये इससे संबंधित यदि कोई भी शंका या क्वेरी है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इन्हीं शब्दों के साथ हम शुरू करते हैं गूगल क्लासरूम। Good afternoon to you all, sir. All my respected teachers. We are here to elaborate, to discuss the Google Classroom, the uses of the Google Classroom. It is my prime responsibility that I have to give maximum to you all so that we can enhance our knowledge, enhance our skill, so that we came to know what is going on and how to use the Google Classroom for conducting our online classes. Another one is on the next, if we see here, some features are available. Google Classroom, it is very much simple way and it allows you to focus on the teaching and learning, enhance communication with the students, easy to learn, very little training required, keep works organized, full integration with the Google Drive, files are automatically duplicated for each student, integrates well with all devices, and the Google every time make any improvements, and it is very much clean design. Now I have to skip for the practical session so that you came to know how I will utilize the Google Classroom. Just I am clicking here and you will follow me, please. You all are requested to go your email ID and you will see Google Apps 3 into 3 dots are available where my mouse is scrolling now, and you just click on this and you will see document, Gmail, Drive, Google Classroom. As you all know, Google Drive and Google Documents, Professor Pankaj Sharma will be present or give a detail about that in the coming days. We are focusing upon the Google Classroom. Just I am clicking here, Google Classroom. It is very much practical session. You will see how it will be utilized, how it will be conducted. Now you will see here, it is a symbol, create or join your first class. Being a teacher, you have to create the class. Being a student, you have to join the class. Therefore, I am focusing upon first how to create the class. I just click on this plus symbol. When you will move the cursor, create or join class. Any query, any question, you all are requested to unmute yourself and ask the question in between. No problem. I welcome you all. Now, you will see here, plus, you have focused upon and click on the plus. You will see join class, create class. It is very much important menu so that we came to know where I should go into that particular Google Classroom. I am repeating this step again because of some of the teachers are lately joined on this particular meet and some are waiting. Professor Umed Singh coming. Here is again I am repeating this particular step. 3 by 3 dot is here
and click on Google Classroom. It will take 1 or 3 seconds and you will see this feature before you. Now here you will click on plus, join class, create class. As I stated earlier, if you are a teacher, take the option create class. If you are a student, take the option join class. ये इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि जो बच्चे होंगे उन बच्चों को आपने बताना है कि आपने ज्वाइन क्लास करना है. आपके पास कोड आएगा, आई विल टेल इट द सेम थिंग लेटर ऑन, कि ज्वाइन क्लास के लिए स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन होगा, क्रिएट क्लास टीचर्स के लिए ऑप्शन होगा. क्रिएट क्लास पर क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा. उसमें क्लास नेम मांगा जा रहा है कि आपने मान लीजिए क्लास नेम रख दिया आपने एमकॉम. सेक्शन आपने मान लीजिए कर दिया यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर. उसके बाद सब्जेक्ट मान लीजिए आपने रख दिया आईसीटी. कमरा नंबर मान लीजिए आपका क्लास का जो फिजिकल रूम है उसको आपने रख दिया 12. These menus are to be completed by you and you will see that it will create a Google Classroom. Name of the class, then section, then subject, then room, and you will just click on the create menu. It is creating. Class is going to create. You all know that we have taken options. ईमेल आईडी में गए, 3x3 के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद गूगल क्लासरूम लिया, गूगल क्लासरूम में जाने के बाद वहां पर क्रिएट का ऑप्शन लिया. ये हमने स्टेप किए हैं 4. उसके बाद आपके पास ये आएगा स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रही है. स्क्रीन में क्या है, पहला स्ट्रीम मेन्यू, उसके बाद है क्लास वर्क मेन्यू, तीसरा है आपका पीपल मेन्यू, चौथा है आपका ग्रेड्स. हम सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रीम्स पे हैं. स्ट्रीम्स पर बिना क्लिक करे भी आपके सामने ये दिखाई देगा कि हाँ ये मेरी क्लास है. इसमें आपको डिस्प्ले हो रहा है एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और नीचे है आपका क्लास कोड. ये क्लास कोड यदि मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाऊं तो आपको हो सकता है और भी बढ़िया दिखाई देगा. यहाँ पर आपके पास मैंने ये 2 स्लाइड अभी कवर की थी, उसके तुरंत बाद मैंने ये आपको ऑप्शन दिया. Step 1, I will share this screen here. This option was given to you. Step 1 and you will see step 2. जो मान लीजिए क्लासेस आपने पहले से क्रिएट की हुई हैं वो आपको यहाँ दिखाई देंगी. नई क्लास आपने प्लस के ऊपर सिंबल क्लिक किया था तो आपको ये क्लास दिखाई दी है. उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने क्लास क्रिएट करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए 2 ऑप्शन दिए. ये आपको मेन्यू बड़े में मैं इसलिए दिखा रहा हूं, हो सकता है वो स्क्रीन में आपको छोटा दिखाई दिया हो. यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टेप 3 क्या है. नेक्स्ट है स्टेप 4. स्टेप 4 में मैंने ये आपका पहले वर्टिकली दिखाई दे रहा है, फिर हॉरिजेंटली दिखाई दे रहा है. ये अब आपके पास दिए हुए हॉरिजेंटली ज्वाइन और क्रिएट. आपने ज्वाइन क्लास नहीं करना, आपने क्रिएट क्लास करना, बिकॉज वी ऑल आर टीचर्स. जैसे आपने क्रिएट क्लास के ऊपर क्लिक किया तो उसने ऑप्शन मांगे, डायलॉग बॉक्स खुला क्रिएट क्लास का. उसमें पहले आपने रखा एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, उसके बाद सेक्शन या सेमेस्टर आपने भर दिया, फिर सब्जेक्ट भर दिया, उसके बाद रूम नंबर आपने दे दिया. ये प्रोसेस हमारा 5 स्टेप्स में कंप्लीट होगा. जब भी हम मान लीजिए नई क्लास क्रिएट करते हैं तो हमेशा हमारा जो फोकस होगा वो जाएगा स्ट्रीम के ऊपर. ऑटोमेटिकली जो स्क्रीन आएगी वो स्ट्रीम की आएगी. स्ट्रीम का मीनिंग आपने कौन सी क्लास क्रिएट की है ये उसमें दिखाया जाएगा. उसके बाद हम आते हैं वापस जहां पर आपको छोड़ा गया था. ये मैं प्रैक्टिकल सेशन इसलिए कर रहा हूँ साथ साथ में ताकि आपको आइडिया आ जाए हाँ हमने करना क्या है. अब आपके पास यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है. यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक किया, एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ क्लास कोड. क्लास कोड के ऊपर जैसे बॉक्स बना हुआ है डिस्प्ले का, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये आपको ये है क्लास कोड I7UFLY6. ये आप स्टूडेंट्स को दे दीजिए. स्टूडेंट्स अपने आप क्लास को ज्वाइन कर लेंगे. किस माध्यम से, इस माध्यम से. आपने क्लास कोड दे दिया, बच्चों के पास चला गया,
तो उनकी ईमेल आईडी से उन्होंने गूगल क्लासरूम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। वो सीधा ये कोड दबाएंगे प्ले स्टोर से गूगल क्लासरूम, मान लीजिए आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ है, और उसके बाद जैसे ही मान लीजिए आपने कोड डाला, यू कैन ज्वाइन दैट क्लास। मीन टू से बीइंग स्टूडेंट, द स्टूडेंट कैन ज्वाइन द क्लास बाय यूजिंग दिस पासवर्ड और कोड। डॉक्टर साहब एक मिनट आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब पंकज शर्मा, वेलकम सर। आप ये बताइए कि जैसे ऊपर ज्वाइन और क्रिएट द क्लासरूम है, तो स्टूडेंट ज्वाइन द क्लासरूम क्लिक करेगा और ये कोड डाल देगा। सॉरी टू डिस्टर्ब। यस सर, यस सर। थैंक यू प्रोफेसर पंकज शर्मा हैज स्टेटेड दैट कि ज्वाइन का ऑप्शन क्लिक किया, उसके बाद ये कोड डाल दिया। जैसे हमने पहले भी बताया कि आपने क्रिएट और ज्वाइन में से आपने अभी क्रिएट का ऑप्शन लेना है। जैसे स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा उस टाइम हम ये भी और एलोबरेट करेंगे। प्रोफेसर पंकज शर्मा जी ने जो इसमें एडिशन किया वो ये है कि आपने बीइंग स्टूडेंट ज्वाइन क्लास के ऊपर क्लिक करके क्लास कोड को आपने उसमें डालना है और क्लास आपकी ज्वाइन हो जाएगी। उसके तुरंत बाद इसमें एक ऑप्शन और नीचे आ रहा है मीट लिंक, जनरेट मीट लिंक। यदि मान लीजिए आपने गूगल मीट के थ्रू क्लासेस लेनी है, पहले ये गूगल हैंगआउट पे होता था, अब उसको क्लियर करके हमने यहाँ पे इसको गूगल मीट के ऊपर फोकस कर दिया गूगल के द्वारा। इसलिए हम सभी धन्यवाद करते हैं गूगल का कि उन्होंने जनरेट मीट लिंक यहीं दे दिया है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप जैसे रूटीन में गूगल मीट करते हैं तो ये मीट लिंक भी आप क्रिएट कर देंगे। आई जस्ट क्लिक ऑन इट। Here is with Meet video meeting, you can connect with the students for distance learning. You can manage Meet in your class. Generate Meet link, आपका क्लास का मीट लिंक यहीं क्रिएट हो जाएगा। आप इसको कॉपी करके बच्चों को दे सकते हैं ताकि बच्चे उस क्लास के साथ जुड़े। अभी यदि आप देखते हैं, मान लीजिए आपने इसको सेव कर दिया, ये आपका क्लास का जो लिंक क्रिएट हुआ, ये आपका जितने दिन आप इस क्लास को मैनेज करना चाहते हैं, एंगेज करना चाहते हैं, ये एज इट इज एक ही लिंक आपका हर रोज काम देगा। हर रोज आपको नया लिंक भेजने की जरूरत नहीं होगी। डॉक्टर साहब एक मैं थोड़ा ये मेरा जमीन खोल रखा साथ साथ। जी सर जी। इसमें क्लास कोड तो दे रखा है जी। जी। लेकिन जो आपने आपके नीचे लिंक है ये नहीं दिया हुआ इसमें। हाँ, वो इसलिए नहीं दिया हुआ डॉक्टर साहब, मेरे पास जो मैंने ईमेल आईडी खोली हुई है वो cdlu.ac.in की है। जो अथॉराइज्ड है ईमेल आईडी जी सूट के ऊपर रजिस्टर्ड हैं, उनके पास ये गूगल मीट का लिंक मिलेगा आपको। जी सर, जी सर। आईटी सेल से आप अपनी जीमेल आईडी cdlu.ac.in वाली क्रिएट करवाइए। उसके बाद हाँ वो है मेरे पास, वो है जी। जी सर। ठीक है सर, यहाँ तक आगे चलें सर, कोई जल्दी नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं। जो जो क्वेश्चन आएंगे आई विल ट्राई टू टैकल। और जो मान लीजिए एक्सपर्टीज है हमारे पास, प्रोफेसर पंकज शर्मा जी हैं, उनकी तरफ से यदि कोई और सजेशन आता रहा उसको हम इसमें इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे। जी, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। पहले क्लास कोड बच्चे क्रिएट करेंगे, यानी ज्वाइन करेंगे क्लास को और कोड डाल देंगे, उसमें ज्वाइन हो जाएगा। हमने मीट लिंक दे दिया है यहाँ पर। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर क्लास वर्क के लिए। पावर पॉइंट के माध्यम से मैं आपको ये चीज रिपीट कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि हो सकता है स्क्रीन वहां पर आपके मोबाइल में छोटी हो। स्ट्रीम ऑफ द क्लास ये हमने ओपन कर दिया था, क्लियर कर दिया था। उसके बाद ये मैंने आपका कोड दिखाया, इसमें कोड दूसरा, क्योंकि मैंने कोई और प्रेजेंटेशन यूज की हुई है जो पहले की है, उसमें एक क्लास कोड है जो बच्चों ने ज्वाइन करने के लिए यूज करना है। नेक्स्ट है आपका एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, यहाँ पर क्लास कोड। जैसे शर्मा जी ने बताया कि आपका यहाँ गूगल मीट लिंक नहीं है। इस टाइम जब मैंने ये क्रिएट की तो मैंने जीमेल आईडी की यूज की थी, इसलिए यहाँ पर लिंक नहीं आया। जब आप ये ऑर्गेनाइजेशनल आईडी यूज करेंगे तो सभी के लिए गूगल मीट लिंक यहाँ पर मिलेगा, जो आप बच्चों को जोड़ने के लिए गूगल मीट पे क्लास ऑनलाइन अटेंड करवाने के लिए उनको भेजेंगे और उन बच्चों को आपस में जोड़ेंगे। क्लियर शर्मा जी, अशोक जी? हाँ जी क्लियर सर। ओके, नाउ अनदर पॉइंट हमने यहाँ पर, उसके बाद इसी पे आपका है ऑप्शन राइट साइड में सिलेक्ट थीम। यदि कोई आप थीम चूज करना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने सिलेक्ट थीम के ऊपर क्लिक किया। थीम का मीनिंग ये है कि आपने मान लीजिए कंप्यूटर की क्लास है तो कंप्यूटर से संबंधित इसमें जोड़ना है, अकाउंटिंग है तो अकाउंटिंग ही जोड़ना है, लिटरेचर से संबंधित है तो लिटरेचर का आपने इसके ऊपर, ताकि डिस्प्ले होते ही आपको ये पता लग जाए इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। जैसे जनरल है, इंग्लिश एंड हिस्ट्री है, या मैथ एंड साइंस है,
ये आप जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आर्ट्स, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स की मान लीजिए कोई क्लास है तो स्पोर्ट्स के लिए आप ये थीम यूज कर सकते हैं। अदर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इट इज योर चॉइस। किसी एक के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने जनरल में यहाँ पर ये कंप्यूटर की क्लास थी इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट क्लास थीम कर दिया, तो ये आपका थीम कन्वर्ट हो जाएगा। जो पहले था वो नहीं है, इसकी जगह पर ये दूसरा थीम आ गया। उसके बाद नीचे है अपलोड फोटो। यदि कोई टीचर अपनी यहाँ पर फोटो अपलोड करना चाहता है वो करे, ताकि स्टूडेंट्स इसको आइडेंटिफाई कर लें कि मेरे कौन से टीचर की क्लास है जिसके साथ मैं रूबरू होने जा रहा हूँ। एक छोटा सा मैसेज मान लीजिए यहाँ पर मैं देना चाहूंगा, बाकी आगे डिटेल में मैं बताऊंगा। शेयर समथिंग विद यू क्लास। आपकी क्लास के साथ यदि मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ शेयर करना है, यहीं पर ही आपने क्लिक किया इसके ऊपर, तो आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाएगा शेयर विद योर क्लास। मैंने सिर्फ यहाँ पर ये लिखा गुड इवनिंग टू माय टीचर्स हु आर ज्वाइनिंग दिस मीट। जैसे मैंने पोस्ट किया तो ये सभी स्टूडेंट्स के पास चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऊपर ऑल स्टूडेंट्स, ये सिंबल मैंने यूज किया हुआ है। यदि मैं सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को लेना चाहूँ तो मैं सिलेक्टेड को ले सकता हूँ। अभी तक कोई स्टूडेंट हमने जोड़ा नहीं हुआ है, इसलिए ये सभी स्टूडेंट्स के पास जाएगा जितने जुड़े हुए हैं। एक जुड़ा हुआ है, 2 जुड़े हुए हैं, वो मैं तरीका बताऊंगा आपको कि कैसे जोड़ना है। जैसे आपने पोस्ट किया तो ये मैसेज गुड इवनिंग टू माय टीचर्स ये सभी के पास चला गया एक ही टाइम में, और सेम कॉपी। इसी तरह कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट आप अटैच करना चाहें इसके साथ अटैचमेंट भी भेज सकते हैं। आई विल डिस्कस लेटर ऑन। नाउ गो टू द क्लास वर्क। उस क्लास वर्क से पहले मैं सीधा आपको पीपल पर लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके दिमाग में रहेंगी। हमने बच्चे तो जोड़े नहीं, अब बच्चे के क्लासरूम हम कैसे देंगे, तो मैं क्लास वर्क को स्किप करके पीपल पर आना चाहता हूं। आपके पास पीपल पे जैसे मैंने क्लिक किया तो वहां पर एक बना हुआ टीचर्स का, नीचे बना हुआ स्टूडेंट्स का। आप स्टूडेंट्स के नीचे यदि आप देखेंगे इनवाइट स्टूडेंट्स और गिव देम द क्लास कोड I7UFLY6 जो हम पहले बता रहे थे। जहां मेरा कर्सर स्क्रॉल कर रहा है यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है। अब मैं पहले टीचर्स की बात करना चाह रहा हूँ। हम टीचर्स हैं तो यहाँ पर मैंने किया इनवाइट टीचर्स। इसका मीनिंग ये है, यदि आपका चेयरपर्सन या HOD या आप एक टीचर सभी टीचर्स को एक ही गूगल क्लासरूम यदि यूज करवाना चाहते हैं कि सभी टीचर इसी गूगल क्लासरूम से पढ़ाएं या इसी मीट के लिंक से पढ़ाएं, यदि चेयरमैन ये चाहे कि मैं सभी टीचर्स को यही एक ही गूगल क्लासरूम में लोड करना चाहूंगा तो वो सभी यहाँ पर अटैच किए जा सकते हैं। यहाँ पर बीइंग चेयरपर्सन मान लीजिए आपने इन्वाइट किया सभी टीचर्स को, इनवाइट टीचर्स। मैंने एक टीचर का नाम दिया, मान लीजिए आपने एक टीचर का नाम मैं अपने आप को इंक्लूड कर लेता हूं, सुरेंद्र कुंडू। मैंने जीमेल आईडी से अपने आप को जोड़ा, इनवाइट कर दिया। यहाँ पर इनविटेशन चला जाएगा और वो मान लीजिए टीचर अपनी ईमेल आईडी खोलेंगे, उस ईमेल आईडी से अपने आप को ज्वाइन करवाएंगे। इसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं ये नीचे आपकी ईमेल आईडी चलती जाएंगी जितने लोगों ने ज्वाइन करवाया है। आप ईमेल जिन जिन टीचर्स की जोड़ते जाएंगे वो सभी इनवाइट होते जाएंगे और अपना जो ईमेल आईडी का इनबॉक्स है उसमें जाकर के उन टीचर के पास आपका ज्वाइन क्लास का ऑप्शन मिलेगा, तो दे कैन ज्वाइन द क्लास। आप यदि मान लीजिए टीचर्स को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो नीचे रिमूव का ऑप्शन है, यू कैन रिमूव द टीचर इमीडिएटली, कि मुझे ये टीचर मान लीजिए इस ग्रुप में नहीं जोड़ने हैं। टीचर अपना खुद का गूगल क्लासरूम अपना बनाए और उसे क्लास को एंगेज करे, तो ये ऑप्शन भी आपके पास है। इसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट के ऊपर क्लिक किया, इनवाइट स्टूडेंट। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स को ईमेल के माध्यम से या उस कोड के माध्यम से, कोड यदि आप देते हैं तो बच्चा अपने मोबाइल नंबर से जुड़ जाएगा, उसको ईमेल यहाँ पर आपको देने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर यदि आपके पास सभी बच्चों की ईमेल है तो ईमेल आईडी आप एक बार में ही डाल दीजिए, कोमा कोमा लगा करके। उसके बाद सभी बच्चों के पास लिंक जनरेट हो जाएगा गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करने का। जैसे मान लीजिए मैंने एक स्टूडेंट को भेजा, राकेश, आपकी ईमेल आईडी देना भाई, राकेश कुमार SANI12@gmail.com। ये मैंने ईमेल भेज दी स्टूडेंट को, स्टूडेंट की आईडी पे चला जाएगा। आप अपनी ईमेल खोलें बच्चे, आप ज्वाइन करें। टीचर को हमने कैसे ज्वाइन करना है ये मैंने बताया आपको।
स्टूडेंट को कैसे ज्वाइन करवाना ये बताया। इसको इन्हीं स्टेप को सिर्फ यहीं तक का यदि हम देखना चाहेंगे अपने गूगल के माध्यम से, सॉरी इनविटेशन पावर पॉइंट के माध्यम से, यहाँ पर था ये बीच में जो मैंने कोर्स वर्क वाला स्किप किया अभी, क्लास वर्क वाला, उसको मैं बाद में करूंगा। ये है आपका टीचर्स, मान लीजिए टीचर यहाँ सुरेंद्र कुंडू है और स्टूडेंट है, अभी तक हमने कोई जोड़ा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिया टीचर को इनवाइट करने के लिए, आपके पास ये बॉक्स खुल रहा है, इनवाइट टीचर, टाइप ईमेल आईडी एंड देन इनवाइट एज आई टोल्ड इन अर्लियर स्क्रीन। उसके बाद स्टूडेंट्स को भी आपने इनवाइट करना है, वो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि आपने कैसे लिंक भेजना है और कैसे उनको ज्वाइन करवाना है। जब आपके पास कोड नहीं है तो बिना कोड के आप ईमेल के माध्यम से उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। अब हम आते हैं प्रीवियस स्लाइड पर जहां हम चल रहे थे। क्लियर हो गया पीपल? अब मैं स्ट्रीम पर एक बार वैसे क्लिक करके मैंने पीपल के ऊपर स्क्रीन किया, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कोई किसी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया या नहीं किया। तो ये एक स्टूडेंट है जिसने अभी तक ज्वाइनिंग की कंफर्मेशन अभी तक नहीं दी है। वो जैसे ही मान लीजिए ज्वाइनिंग की कंफर्मेशन देगा तो आपका ये लिंक ऑल आ जाएगा यहाँ पर। ओके, नो प्रॉब्लम, वी skip it now. Here is, now you can see one student, इन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद आपका ये जहां पर मेरा ये कर्सर घूम रहा है, मैंने आपको इसको कवर अप किया है। वन स्टूडेंट इन्होंने शो कर दिया कि यस एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। उसके बाद मैं आता हूं यहाँ पर क्लास वर्क में। क्लास वर्क में आपके पास 3-4 ऑप्शन है। मीट, सबसे पहले मीट का मीनिंग आपको गूगल मीट का जो लिंक दिया गया है उसी मीट से आप स्टूडेंट्स को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। दूसरा गूगल कैलेंडर, यदि मैं मान लीजिए गूगल कैलेंडर पे थोड़ा फोकस करता हूं तो मैंने जैसे गूगल कैलेंडर पे क्लिक किया तो आपको जैसे गूगल मीट की यहाँ पर क्लास की ट्रेनिंग दी गई थी आईटी सेल के द्वारा, मिस्टर गुलशन जी हमारे साथ अभी भी हैं और उस टाइम भी थे। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 बजे तक का ये 7 तारीख को अपना ये क्रिएट कर दिया था कि मैं 2 से 3 क्लास लूंगा गूगल क्लासरूम के ऊपर। तो आप भी इसी तरह इसको शेड्यूल कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई गूगल मीट आगे, मान लीजिए आप 22 तारीख को, जैसे मान लीजिए पंकज शर्मा जी की क्लास है 17 तारीख को, कितने बजे का टाइम दिया हुआ है? 3 से 4 का। ये सर 3 से 4 का मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन दे दिया और इसमें गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो भी ऑप्शन हैं आप उनको भर दें। गूगल मीट में ये डिस्कस हो चुका है, मैं इसके ऊपर इतना ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और ना ही आपका टाइम लूंगा। सेव करके मैंने इसको छोड़ दिया है। अब आते हैं हम मीट गूगल, ये क्लास ड्राइव फोल्डर, गूगल क्लास की ड्राइव के ऊपर भी शर्मा जी बोलेंगे, प्रोफेसर पंकज शर्मा जी जो हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। अब मैं सीधा बात करता हूँ आपके क्रिएट पे। हमने जैसे क्रिएट के ऊपर क्लास, मान लीजिए क्रिएट के ऑप्शन आपके सामने जो दिखाई दे रहा है उसको मैंने क्रिएट प्लस सिंबल को क्लिक किया। इसमें 4 ऑप्शन आएंगे, असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, रीयूज पोस्ट। असाइनमेंट का मीनिंग क्या है? यहाँ पर मैंने असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करना है। मान लीजिए आप बच्चों को असाइनमेंट देना चाहते हैं तो उसके बाद आपका ये ऑप्शन खुलेगा। पहला है टाइटल, टाइटल मान लीजिए मैंने दे दिया यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी। इंस्ट्रक्शंस, मान लीजिए मैं असाइनमेंट देना चाह रहा हूँ रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर और ये चाहता हूँ कि इंस्ट्रक्शन दूं मैं। मैंने ये कहा अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3। मान लीजिए 3 क्वेश्चन आपने असाइनमेंट में दिए, उनमें से ये चाहते हैं आप 3 में से बच्चा 2 करे। उसके अलावा आगे ऑप्शन है इसमें नीचे ऐड, मान लीजिए मैं अपना जो पेपर है गूगल ड्राइव पर छोड़ना चाहता हूँ या क्वेश्चन पेपर का लिंक देना चाहता हूँ या किसी फाइल का लिंक देना चाहता हूँ या मीट का लिंक देना चाहता हूँ या फाइल का लिंक देना चाहता हूँ या यूट्यूब का कोई मान लीजिए वीडियो उसको मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। जो भी ऑप्शन आप यूटिलाइज करना चाहते हैं यू कैन क्रिएट। उसके बाद मान लीजिए पावर पॉइंट ये फाइल है, इसको मैं अटैच करना चाहता हूँ तो आपने जस्ट यहाँ पर फाइल, ये आपका है फाइल, इसके ऊपर आपने क्लिक किया जैसे आप जीमेल के ऊपर जोड़ते हैं। सिंपली आपने वहां पर गूगल ड्राइव से इसको उठाना है और उसके साथ अटैच कर देना, इंसर्ट फाइल यूजिंग गूगल ड्राइव। ये मान लीजिए कोई भी फाइल है, सपोज ये है जेडएसटी की, ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और इसको इंसर्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली ये फाइल वहां पर अटैच हो गई। और उसके साथ
स्टूडेंट्स कैन व्यू दिस फाइल, ये ऑप्शन खुला है यहाँ पर। यदि मैं ये चाहता हूँ स्टूडेंट एडिट भी करना चाहे तो एडिट भी कर दें। नीचे है एक ऑप्शन और मेक ए कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट, मैंने ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के पास एक एक कॉपी चली जाए, तो मैंने जैसे क्लिक किया यहाँ पर स्टूडेंट कैन व्यू फाइल, उसके बाद राइट साइड में आएंगे हम। यहाँ तक यदि कोई क्वेरी तो आप पूछ लीजिए प्लीज, कोई भी। नहीं है तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर है, ऑल स्टूडेंट्स का ऑप्शन खुला हुआ है। जितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, एक ही स्टूडेंट है ये, इसको मैंने यहाँ पर ज्वाइन करवाया, मैंने ऑप्शन दिया हुआ ऑल स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर पॉइंट ये चाहता हूँ कि मेरे जो असाइनमेंट है वो 20 मार्क्स की है, मैंने डिलीट करके उनको 20 मार्क्स कर दिया 20। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो असाइनमेंट है आने वाले टाइम में खुले, आज ना खुले। मैं ये चाहता हूँ 19 तारीख को टाइम, मान लीजिए मैं सुबह 9 बजे का टाइम भरना चाहता हूँ, मैंने सुबह 9 बजे का टाइम दे दिया, 9 PM हो गया, मैं इसको थोड़ा AM कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, इट इज योर चॉइस। आप कीबोर्ड से इसको कर सकते हैं आराम से। अगस्त 19 को 9 बजे ऑटोमेटिकली असाइनमेंट स्टूडेंट्स के पास डिस्प्ले होगी, यदि आपने स्केड्यूल किया हुआ है तो। यदि स्केड्यूल नहीं किया हुआ है तो फिर ये आप जैसे इसको आप मान लीजिए छोड़ेंगे, उसी टाइम ये स्केड्यूल ना होकर के सभी को चली जाएगी। अब हम यहाँ पर आगे, ड्यू डेट आपकी अगस्त 19 है। टॉपिक यदि मान लीजिए आपने कोई इंक्लूड करना, टॉपिक इंक्लूड कर सकते हैं। रुब्रिक का मीनिंग क्या है कि आपने टोटली जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या इस 20 मार्क्स को आप लेना चाहते हैं कि मैं कुछ चीजें क्रिएट करना चाहता हूँ। क्रिएट का मीनिंग क्रिएट रुब्रिक। मैंने यहाँ पर स्कोरिंग को कर दिया है कि 10 में से, या मान लीजिए 100 में से 30 हो या 20 के ऊपर आपने नीचे ले लिया, या कोई एक क्राइटेरिया कर दिया आपने। मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि करेक्टनेस के ऊपर मैं एक यहाँ पर क्राइटेरिया क्रिएट करूं, और जिनकी करेक्टनेस होगी, मान लीजिए जो अच्छी तरह से असाइनमेंट देंगे या राइटिंग स्किल बढ़िया हुई, उनको 6 मार्क्स के बेस पे उसको स्कोर दिया जाएगा। लेवल आपने मान लीजिए 6 कर दिया। यहाँ पर ये एडवांस चीजें हैं। रूटीन में जो आप रूटीन में जो आप यूज कर रहे हैं वो पिछले वाला ही था। रुब्रिक जब यूटिलाइज करना चाहें आप कर सकते हैं, ये नहीं कि हम मान लीजिए इसको यूज नहीं करना चाहें, इसको यूज करें। उसके बाद है चेक प्लेजियरिज्म ओरिजिनलिटी। मान लीजिए आप कोई मैटर भेज रहे हैं या बच्चों को आपके पास, वो वास्तव में एंटी प्लेजियरिज्म जो आपके सॉफ्टवेयर हैं उससे चेक होकर आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो। उसको जैसे चेक किया उसी टाइम जिन बच्चों ने भेजा है उसकी रिपोर्ट आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। आप ये चेक कर पाएंगे यस प्लेजियरिज्म बच्चों ने कॉपी पेस्ट किया या नहीं किया, तो यहीं पर आप क्लिक करेंगे। शर्मा जी, अशोक जी, आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा अभी। अशोक प्रासर जी, आवाज आ रही है? तो शायद कहीं व्यस्त हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है। एनीवे, ये सारे ऑप्शंस हमने क्रिएट किए। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर सेव होता रहेगा, उसके बाद जैसे ही असाइन किया, ये सभी स्टूडेंट्स के पास कॉपी चली जाएगी। एक ऑप्शन है यहाँ पर एरो मार्क, उस पर क्लिक किया, असाइन, स्केड्यूल, सेव ड्राफ्ट, डिस्कार्ड ड्राफ्ट। अभी असाइन करना चाहते हैं या स्केड्यूल के हिसाब से करना चाहते हैं, या सेव करके छोड़ना चाहते हैं, या इस पूरे को डिलीट करना चाहते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके पास। जब तक आप असाइन नहीं करेंगे तब तक ये जाएगा नहीं। अब मैंने इसके ऊपर असाइन पे क्लिक किया, असाइन, टेकिंग द टाइम, ये असाइनमेंट चली गई। मिंटू से कहां चली गई? आपके इस फोल्डर के अंदर 011 असाइनड, यानी आपने एक असाइनमेंट दी है। व्यू असाइनमेंट, यदि आप और भी मान लीजिए दी हुई है आप देख सकते हैं। असाइनमेंट इमीडिएटली असाइन की है, इसलिए हमने इसको स्केड्यूल नहीं किया है, तो एक ही बच्चे को असाइन हुई है, क्योंकि हमारा एक ही बच्चा है जो इस टाइम क्लास में एंगेज है, राकेश कुमार। इसमें कोई इंस्ट्रक्शंस देखनी थी आपने, इंस्ट्रक्शंस आपकी आ चुकी है यहाँ पर, जो आपने भेजी है वो यहाँ पर भी डिस्प्ले करेंगे। 20 पॉइंट्स का है, और ड्यू डेट आपका अगस्त 19 9:00 पे उसके पास चला जाएगा। इसके साथ अटैचमेंट आपको ये दिखाई दे रही है, ये है क्लास वर्क देने का
प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं हाउ टू सेंड द क्लास वर्क टू द स्टूडेंट्स। नाउ 1 सेकंड के लिए आप होल्ड इसलिए करेंगे क्योंकि कुछ बीच में आ रहे हैं और मैं इनको एडमिट कर देता हूँ। ओके, हम यहाँ थे, एक बार इनको मैं रिवाइज कर दूं। जो हमारे पास थे क्लास कोड का हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमारे पास क्लास कोड के तुरंत बाद बच्चों को ज्वाइन करवाने का प्रोसेस बता दिया था। जो टीचर्स बाद में आए उनके लिए मैं थोड़ा रिवाइज भी कर देता हूँ। ये आपके पास क्लास कोड आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, ये बच्चों को आपने देना है। बच्चे मोबाइल से ही गूगल क्लासरूम डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, उसके बाद उसमें ज्वाइन का ऑप्शन लेकर के इसमें पासवर्ड डाल दें तो वो अपनी क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। उसके बाद ये थीम चेंज करने का मैंने बताया था। कोई भी थीम जो आपको अच्छा लगे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और क्लास के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद था क्लास वर्क। ये क्लास वर्क में एक मेनू आएगा, मेनू है क्रिएट का। क्रिएट में असाइन वर्क टू योर क्लास हियर। आपकी जो क्लास है उसको कौन कौन सा काम किया जाना है और आप लोगों ने कैसे उनसे रिस्पॉन्स लेना है। क्रिएट क्लास वर्क में 4-5 ऑप्शन है। पहला असाइनमेंट, फिर एक क्विज असाइनमेंट, फिर एक क्वेश्चंस, फिर एक मटेरियल।